Hare Krishna, everyone. So it's 5 a.m. and I'm all set, all ready for Kashi Vishwanath. As I promised you people that I'll be taking you to all the 12 Jyotirlingas this year. So this is our first Jyotirlinga. We are there in Kashi on 2nd, 3rd and 4th of May. I have a lot of students joining me from Shiv Mahapuran batch and I'll take you through the journey. आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे और आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाएंगे, काशी जी के दर्शन कराएंगे और बहुत सी बातें करेंगे काशी के बारे में। मिलते हैं रास्ते में। थैंक यू। भैरव बाबा को ब्राह्मण हत्या का एक श्राप लग गया था और उस ब्राह्मण हत्या को ख़त्म करने के लिए वो भोले बाबा के पास गए, क्योंकि भोले बाबा का ही वो स्वरूप थे। और कहने लगे कि क्या करूं कि जिससे मेरा ये श्राप ख़त्म हो जाए। तो भोले बाबा ने कहा तीर्थ करो। तो उस तीर्थ में घूमते घुमाते जब कुछ नहीं कहीं पे मिला तो फिर वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी के पास जाकर कहने लगे कि आप ही बताओ कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा काशी जाइए। और काशी आते ही भैरव बाबा का ये जो एक श्राप था वो ख़त्म हो गया और भैरव बाबा सदा के लिए यहीं रह गए। और सबसे पहले जब हम काशी विश्वनाथ आते हैं तो सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। आओ आपको दर्शन करवाते हैं। हम रास्ते में 2 मिनट में भैरव बाबा के मंदिर पहुंच रहे हैं। काल भैरव बाबा काशी के प्रधान देवता हैं। यहाँ के राजा विश्वनाथ, रानी अन्नपूर्णा और कोतवाल, काशी कोतवाल काल भैरव जी हैं। यहाँ हर तरह की पूजा होती है, राजसी, तामसी, सात्विक। और कली में ऐसा माना गया है कि जो भैरव को भजता है वो पाप और कर्म से दूर रहता है। इसलिए यहाँ पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, बाबा का दर्शन पूजन करके अपने शरीर से किए गए हुए पापों का कष्ट हरने की कामना करते हैं। और काशी में इनका दर्शन का विशेष महत्व है। ऐसा माना गया है कि काशी में जो आदमी काल भैरव का दर्शन नहीं करेगा उसको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए काशी में जो भी आया पहले यहाँ दर्शन करके फिर बाबा विश्वनाथ के पास जाता है।
everyone. So it's 4 a.m. in the morning and it's 3rd of May, and
we are going for the Baba Vishwanath Darshans, and I'll show you the way. We've got a lot of students following us, and they all are here. And although the mobile phones are not allowed inside the beach, inside the Baba Vishwanath temple, so we'll still try to show you whatever we can. And also we have plans after the darshans as well for many temples where the mobile phone is allowed. So we'll be showing you those temples as well. Har Har Mahadev. So guys, welcome to Baba Vishwanath. And such a pleasure that you people are here, right? And you're part of Rudra Vedic Academy and Shiv Mahapurana as well. So I will always share something which is related to Jyotish, all the time. And I could see when we were doing the puja today, when we were doing all the anushtanas, and some of you have done Rudra Abhishek also. I found that a lot of things are not done the way should be done, right? So मैं उसके बारे में I want to share, my learnings from Shiva Mahapurana, that there are certain, vidhis that are to be followed, and those vidhis are not only the vidhis that you should follow here, you can follow it anywhere, right? Like in your home temple also, if you go, at a place where there's a small shivling, these 6-7 steps that I want to tell you that you people should do, maybe a Jyotirlinga or even a small, home, even a home temple also. So the first thing that I've observed is that a lot of people you don't know the meaning of or the planet association or the graha association of the things that we are offering to Shivalinga or Shiva. Right. So, for an example, all the 9 planets and the ascendant, the Lagna degree has an offering on Shivalinga based on Shiv Mahapurana. Okay. So, who could tell me what can we offer for Lagna? Not the Lagna Lord, I'm talking of the Lagna degree. What can we offer for the Lagna degree on a Shivalinga? No. 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 Anyone who could tell me that would be absolutely great. See what we can offer for, you saw the Aarti yesterday, okay?
तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी नवनीत जी, ये जो वेद हैं और ये जो पुराण हैं, जैसे हमारा शिव महापुराण है या फिर जी, विष्णु पुराण है, जी। इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो वेद हैं इनको समझना आज की डेट में, आज के कलयुग, जैसे देखिए हम ऐसे तो नहीं है कि हमारे भारत में जो वेद हैं या शास्त्र हैं पढ़ाए नहीं जाते हैं, जी। बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं। गुरुकुल में इनकी पूरी जो है विद्या दी जाती है, लेकिन हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हम जिस तरह से इंग्लिश स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, तो हमें संस्कृत का भी जो है इनिशियल लेवल पे ज्ञान नहीं है। 80% जो आज की डेट में यंगस्टर्स हैं, तो शास्त्रों को समझना, वेदों को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जी। कभी कभी आप जब एक श्लोक पढ़ते हो तो ऋषि कुछ और कहना चाह रहे थे, और लेकिन आप उसको किसी और तरह से परसेप्ट करते हो। तो 18 हमारे पास पुराण हैं। 6 पुराण जो हैं वो शिव जी को डेडिकेटेड हैं, 6 विष्णु जी को और 6 ब्रह्मा जी को। पुराणों में क्या किया गया कि आपके वेदों और शास्त्रों को जो है एक स्टोरी फॉर्म के अंदर एक उनको पूरा का पूरा जो है समित कर दिया गया। तो वहाँ पर अगर आप एक श्लोक समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको अच्छी तरह से परसेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आपको एक स्टोरी फॉर्म में जी। अगर आपको आपके सामने रख दी जाए तो वो बहुत आसान है। तो वेद और शास्त्र जो थे पहले केवल ब्राह्मणों के लिए या उच्च जाति के लिए, श्रेणियों के लिए जो बनाई गई थी उसके लिए थे, लेकिन जो पुराण है वो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, किसी भी श्रेणी से हो, कोई भी उसकी फॉर्मल एजुकेशन हो, क्वालिफ़िकेशन हो, और आप उसको ईज़िली समझ सकते हैं। जब मैंने ज्योतिष पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन जो है वो कर सकता है, लेकिन आपके जीवन का आधार क्या है, आपके जीवन में उपाय कैसे किए जा सकते हैं, आपके जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन तो शायद ज्योतिष मुझे नहीं दे पाया। ज्योतिष ने मुझे सिर्फ ये बताया कि ये प्रॉब्लम है और ये जीवन हो सकता है, लेकिन उनके जो उपाय थे, उनके जो आप एक सिचुएशन से अगर निकलना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पुराणों के अंदर हैं। और शिव महापुराण महापुराण है, राइट? इट इज़ लाइक सूर्य इन दी ब्रह्मांड। तो सभी पुराणों का एक जो सूर्य, एक सेंट्रल पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, तो वो शिव महापुराण है। चंद्र जो है वो श्रीमद् भागवतम है। सो अगर आप जीवन में एक ऐसी दिशा, एक ऐसा उजियारा ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी रोशनी ढूंढ रहे हैं जिससे आपका जीवन सफल हो सके, आपको जीवन के मायने पता लग सके, आपको जीवन कैसे जीना है, कैसे अपने छोटे से छोटी चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, आपको अपने जीवन में शिव महापुराण अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए या गुरु के द्वारा आपको ग्रहण करना चाहिए। जी।
गौरी केदारनाथ मंदिर में आ गए हैं, यहाँ पर गौरी कुंड के पास। और इसकी मान्यता ये है कि अगर आप जीवन में केदारनाथ या बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं तो आपको यहाँ पर साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो शिवलिंग है ये स्व उत्पन्न शिवलिंग है। और आओ आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत सी यहाँ पर कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो हमारे केवट हमें बता रहे थे, बड़ा मज़ा आया। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस मंदिर में अंदर जाने के लिए कि यहाँ पर हमें केदार बाबा के साक्षात दर्शन होंगे। स्व उत्पन्न शिवलिंग कोई छोटी बात नहीं होती है। आ जाइए, आपको दर्शन करवाते हैं।